Good morning, class. Today we will learn about the MS Word remaining contents. So let it be start. First thing is how to be select our text in document. There are two ways to select our text in MS Word. You can select text with a mouse or a keyboard. The selected text is highlighted in blue color. So first we learn how to select text with the mouse. When you can select a word or sentence or a paragraph by dragging the mouse pointer over it. You can also select text by just clicking on its given in the table. If you want to select a word, double click anywhere on the word. अगर हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे उस वर्ड के आगे डबल क्लिक करना है। अगर हम किसी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्लिक ऑन द सिलेक्शन बार टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन। थर्ड थिंग इज़ अ पैराग्राफ। अगर हम कोई भी पैराग्राफ यूज़ करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, देन ट्रिपल क्लिक एनीवेयर ऑफ द पैराग्राफ or double click on the selection bar to the left of the paragraph. And last thing is entire document. अगर हम पूरे ही डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं then double click anywhere on the selection bar. Next thing is selecting text with keyboard. हम किस तरीके से कीबोर्ड से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। Click to place the cursor with the text within the text. Use the keyboard to make different selection. यहाँ पे आपको कुछ टेबल दिया जा रहा है जिससे कि हम आसानी से अपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। फर्स्ट दे रहा है ऑन कैरेक्टर वन कैरेक्टर। अगर हमें सिर्फ वन कैरेक्टर ही यूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करें, शिफ्ट के साथ में राइट एरो का यूज़ करेंगे। वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अगर हम कर्सर के लेफ्ट साइड से किसी कैरेक्टर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की का यूज़ करना है। टेक्स्ट टिल वन लाइन अप। अगर हमें अपने टेक्स्ट के एक लाइन ऊपर तक सेलेक्ट करना है तो हमें शिफ्ट के साथ में अप एरो का यूज़ करना है। वहीं अगर हम टेक्स्ट को नीचे की एक लाइन तक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें शिफ्ट के साथ में डाउन एरो की को यूज़ करना है। नेक्स्ट, टेक्स्ट टिल द बिगनिंग ऑफ द लाइन, देन यूज़ शिफ्ट प्लस होम। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट टेक्स्ट टिल द एंड ऑफ द लाइन देन चूज़ शिफ्ट एंड एंड की। Next thing is text till the beginning of the document, then shift plus control plus home। यहाँ पे आपको तीन कीज़ का यूज़ करना है, थ्री कीज़ का आप यूज़ करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एंड होम। नेक्स्ट, text till the end of the document, then you also use three keys, shift control and end key। The entire document, if you want to select entire document with your keyboard then you select Ctrl plus A। Next thing is deleting text. How to be text delete? If you want to delete character, word or paragraph in a document, just follow these steps. To delete a character, place the cursor to its right and press the backspace key once, or place the cursor to its left and press the delete key once. You can also select the character and press the delete key or backspace key. In below pictures, you have seen backspace key in the left side picture and right side picture you have to see delete key. So now you understand where is the backspace key located and the delete key located. Second thing is to delete a word, place the cursor to the right of the word and press Ctrl plus backspace.
You can also place the cursor to the left of the word and press Ctrl plus delete to delete a paragraph. Select it and press either the delete key or the backspace key. तो अगर हम पूरे पैराग्राफ को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें उसको सेलेक्ट करना होगा, और या हम डिलीट की का यूज़ कर सकते हैं या बैकस्पेस की का, दोनों ही की का यूज़ पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करने के लिए हम कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ यूजिंग द undo and redo command. What is the undo and redo? The redo command is used to cancel the action of undo command. When we use undo command, it will cancel the last action done in the document. undo का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम अपने लास्ट एक्शन को वापस लेना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं. और रीडू का यूज़ कब करते हैं? जब हम उस undo कमांड को कैंसिल करना चाहते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ कॉपिंग एंड मूविंग. यहाँ पे कॉपी और मूविंग में डिफरेंस है. कॉपी का मतलब होता है हमारे पास जो चीज़ हमने ली है वो एक जगह से जहाँ से हमने ली है वहाँ पे भी रहे, और जहाँ हम उसको ले जाना चाहते हैं वहाँ पे भी रहे, मतलब एक चीज़ दो जगह हो. ठीक है, तो वो हम कॉपी का यूज़ करेंगे उस. और मूविंग का मतलब होता है जिस चीज़ को हम कॉपी कर रहे हैं वो वहाँ से हट के दूसरी जगह चली जाए, मतलब जिस जगह से हमने लिया है उसको वो वहाँ पे रिमूव हो जाए, वहाँ पे हमें नहीं दिखनी चाहिए. ठीक है ना. तो नेक्स्ट थिंग इज आती है पेस्ट. अब उस कॉपी की हुई चीज़ को हम पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है. हमने ऊपर वाले पैराग्राफ को कॉपी किया और हमने उसको उसी के जस्ट नीचे पेस्ट कर दिया है. तो वो कॉपी और पेस्ट का मतलब है कॉपी में वो चीज़ वहाँ ऊपर हमें दिख रही है, और पेस्ट जब हमने किया तो वो चीज़ हमें वहाँ पे भी दिख रही है. तो दो जगह हमें ये चीज़ दिख रही है. जबकि मूव में क्या होता, आपको ऊपर वाले जो टेक्स्ट हमने कट किया होता वो वहाँ से रिमूव हो गया होता और हमें सिर्फ नीचे वाला जो पैराग्राफ है वही दिखता.